Shanti. A very good evening to all of you who have joined us today in this interactive session on the topic Living Beyond Fear with Dr. Avdesh Sharma. Now, what is fear? It's an emotion or feeling which most of us have experienced at some point of time or the other in our lives. कभी न कभी हमने ये जरूर महसूस किया होगा इस इमोशन को. It can also be described as an unpleasant feeling triggered by the perception of danger, real or imaginary. Actually, this word imaginary triggered something within me. Do we spend so much time in an unpleasant feeling like fear by just imagining excessively? Things that have not happened, we are just creating and feeling fearful. The future can present itself in 1,000 different ways in our minds, and most probably, none of them will ever become a reality. ये तो हमने जरूर एक्सपीरियंस किया होगा. जो भी हम डर के मारे सोचते हैं वो कभी सच होता नहीं. In spite of knowing all this, ये सब जानते हुए भी, we are very familiar with the patterns of fear. Fear of rejection, fear of facing certain people, situations, fear of diseases, fear of the unknown, fear of the future. We have been facing time and again. Is it really possible to live a life free of fear? To live beyond fear? To answer this and much more, we have with us today Dr. Avdesh Sharma ji. A very warm welcome to you, Dr. Avdesh. Thank you very much, Sister Bhavna, and greetings to everyone. Thank you. I'll give you a brief introduction about Dr. Avdesh, who is here today with us to clear all our doubts. Dr. Avdesh Sharma is an MD in Psychiatry and is a gold medalist from the National Institute of Mental Health and Neurosciences, NIMHANS, Bangalore. He's a consultant well-being psychiatrist with over 35 years of clinical practice in Delhi. He has worked extensively with the print, radio and television, producing and anchoring several series on mental health and well-being, like Mind Watch and Man Ki Baat. He has been the international lead on public education for the World Psychiatric Association, WPA. He is the chairperson of the WPA section of Spirituality and Mental Health. He is also the International Distinguished Fellow of American Psychiatric Association. He has also featured in several TV series as a guest speaker in the Peace of Mind and Awakening channel. Now over to Dr. Avdesh Sharma, who will enlighten us on the topic Living Beyond Fear. Now just before we start, a small instruction कि जो भी हमारे क्वेश्चंस है या क्वेरीज है उनको हम चैट में लिखेंगे और जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा लास्ट में उनमें हम जरूर डॉक्टर अवधेश शर्मा से उनका उत्तर पूछेंगे. तो नाउ ओवर टू यू डॉक्टर अवधेश शर्मा. Thank you, Bhavna, and greetings of health, happiness, peace and prosperity and purpose in life to each one who's present here and others who are watching on the YouTube channel. मैं करीबन 40 वर्ष से साइकेट्री की प्रैक्टिस में हूँ and over a period of time is also a reflection of what is happening in the society. और पिछले कुछ वर्षों में डर और एंजाइटी और उसका जो एक चरम सीमा है जिसको हम पैनिक अटैक्स कहते हैं
the numbers and the pervasiveness in the society I have not seen before. पिछले 1.5 से 2 सालों में जहाँ पे कि हम एक अनयूजुअल सी जिंदगी जी रहे हैं एज ह्यूमैनिटी, वी आर नॉट एनी लॉन्गर 5 डायमेंशनल. हम पांचों सेंसेस से इस समय नहीं काम कर रहे हैं, ज्यादातर इसी तरह से ऑनलाइन 2 डायमेंशनल काम चल रहा है, देखने का और सुनने का. उस वजह से भी और जिस तरह का एक जनरल माहौल है उस वजह से भी एट ऑल लेवल्स, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो एल्डरली है जो अकेला रह रहा है, चाहे वो व्यक्ति है जिसके पास काम है लेकिन उसे पता नहीं है कि वो कितने दिन चलेगा, कब लॉकडाउन हो जाएगा, या वो व्यक्ति जिसके पास काम नहीं है, वो व्यक्ति जो कि अदरवाइज सेफ है इन चीजों से, लेकिन उसे ये मन में आशंका जरूर रहती है कि वो कब शायद किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित हो जाए, और अगर हो जाएगा तो उसके साथ क्या, या उसके जो पेरेंट्स या उसके जो फैमिली मेंबर्स कहीं दूर रहते हैं उनके साथ क्या होगा, और आने वाले समय में क्या होगा. Now, it's a very potent mix of having fear and anxiety in the society at large. जो आंकड़े हमारे को दिख रहे हैं as far as mental health of the population is concerned, they are pretty scary. और स्केरी होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जब हम उस स्थिति को टच करते हैं जहाँ पे कि सर्टेन पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑलरेडी फीलिंग कि इस तरह के कुछ इमोशंस हैं जो हमेशा उनके साथ चल रहे हैं, तो वो पॉपुलेशन के साथ साथ और ऐसे लाखों लोग होते हैं जिनमें वो कुछ सिम्टम्स होते हैं या वो एक फीलिंग होती है, लेकिन वो अभी क्लिनिकल सिंड्रोम नहीं बना है. आज जो हम बात करेंगे कि किस तरह से वो लोग जो कि किसी कारण से आज उस लेवल पे हैं जहाँ पे कि डे टू डे लिविंग में भी उनको अपने आप को संभालना मुश्किल हो रहा है, या इतना कुछ हो रहा है कि उसकी वजह से भी उनको बहुत तरह की डर पैदा होने शुरू हुए हैं. लेकिन क्या हम उसको रोक सकते हैं, और मैं उससे भी एक स्टेप आगे कि क्या हम डर के आगे एक लाइफ विच इज नॉट ओनली ऑर्डिनरी लाइफ, अ लाइफ बियॉन्ड फियर, क्या ये पॉसिबल है? कैन वी टच दैट डायमेंशन ऑफ वेलबींग? माय पर्सनल बिलीफ इज यस, इट्स पॉसिबल. और इस सेशन के एंड में वी विल एज अ ग्रुप decide what we can all do together, because I think most important thing which we have to realize today is कि हम में से कोई भी अकेला नहीं है. एक चीज हमें वायरस ने सिखाई कि जिस जगह पे हम रहते हैं हम आइसोलेशन में नहीं है. जो हवा हम ब्रीथ करते हैं वही हवा दूसरा व्यक्ति ब्रीथ करता है. जो थॉट्स हम सोचते हैं वो किसी न किसी तरीके से हम दूसरों को कम्युनिकेट करते हैं. और आज के समय में जहाँ पे कि सोशल मीडिया, टेलीविजन चैनल्स आर ऑल ओवर द प्लेस, समटाइम्स मच मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, तो किस तरीके से हम उन सब चीजों को संभाल कर अपने आप को और अपनों को डर से, चिंता से और मेंटल ब्रेकडाउन से बचा सकते हैं. उसके बियॉन्ड क्या हम एक फुलफिल्ड लाइफ ऑफ पर्पस अपने लिए और दूसरों के लिए जी सकते हैं. I thought it was worthwhile first to talk about what is living, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है living beyond fear. Living is not just existing. It is not just surviving. It is a positive state. ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम हर समय अगर हेल्थ में, हैप्पीनेस में, अपने आप को कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ हीलिंग में, प्रॉस्पेरिटी में, पीस में रख के अपने अंदर, क्योंकि हमारे अंदर भी कई तरह की चीजें हैं विच वी विल टॉक अबाउट, तो अपने अंदर के थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस, मेमोरीज को संभाल कर दूसरों के साथ, चाहे वो घर में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो सोसाइटी में एट लार्ज हो, उनके साथ पॉजिटिव तरीके से अवे फ्रॉम फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, डिजीज एंड डिस्ट्रेस एक पर्पसफुल जिंदगी बिता सके. That would be truly living.
And I think silently each one of us has to ask that question कि क्या मैं सिर्फ जी रहा हूं या घिसट घिसट के जिंदगी को चला रहा हूं. And if one is not happy in terms of the total purpose that we want to achieve, then it is time to change. When we talk about beyond, beyond के हिंदी में तो कई मतलब है. Beyond का मतलब है आगे, ऊपर, और उसका सबसे अच्छा मीनिंग जो मैं समझता हूँ वो है उपराम. To be above something and yet being there. You know, it is like the clouds. When you are like a cloud, or in today's modern technology, when you are more like watching something like a drone from above, you are there, so you're part of it, and yet you are not stuck in it. So if we can be in that state of mind of being beyond. And the third thing that we are talking about today is fear. Fear के again हिंदी में कई मतलब निकलते हैं. डर, चिंता, आशंका, घबराहट, ये हमारी सोचने की और साथ ही साथ उस सोच को महसूस करने की जो पावर्स हैं उनको दर्शाता है. यू नो, डर से कई बार लोग ये सोचते हैं कि इट्स अ वेरी नेगेटिव स्टेट, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, वी शुड नेवर बी फेयरफुल ऑफ एनीथिंग. बट द फैक्ट इज कि जो डर है वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है नेचर का हम सब के लिए. मान लीजिए एक छोटे से बच्चे को डर ही नहीं है कि वो कहीं से कूद जाए, तो वो एक अगर ऊपर टेबल पे खड़ा है, वी सी दैट हैपनिंग अ लॉट ऑफ टाइम, किड्स थिंक दैट दे आर शक्तिमान और सम स्पेशल बैटमैन, और वो कूद जाते हैं. अगर वो डर नहीं है तो दे विल बी हर्ट. सिमिलरली अगर वो किसी गर्म चीज को टच कर देते हैं, आग के पास चले जाते हैं, देन दे वुड बी हर्ट. So nature has built in a mechanism of being fearful in certain protective situations. Unfortunately, जो प्रोग्रामिंग होती है उसके बाद माइंड की, स्पेशली बाय द सोसाइटी. मान लीजिए एक बच्चा सड़क पे साइकिल सीखते हुए गिर जाता है और उसके बाद दूसरों का जो रिएक्शन होता है वो इम्पोर्टेंट होता है. अगर आप गिरे और किसी ने कहा कि ओ हो गिर गए, वो हो चोट लगी, खून आ गया, तो अब उसके मन में कुछ और चलना शुरू हो जाता है. अगर वो कहते हैं अरे ये गिर गए कोई बात नहीं, थोड़ी सी चोट हो ये तो ठीक हो जाएगी कल तक, तो अब उसकी दूसरी प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है. सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट फॉर ईच एंड एवरीथिंग दैट वी हैव एक्सपीरियंस्ड, व्हाट इज द कंडीशनिंग दैट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ इट. अगर वो कंडीशनिंग डर से शुरू होती है और फिर बार बार वो रिपीट होती है. इसी साइकिल के इंसिडेंट को थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाएं कि आसपास वालों ने कहा देखा अगली बार जाओगे ना बहुत ध्यान देना पड़ेगा, गिर जाओगे फिर से चोट लगेगी, फिर से घर में लेटना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, सुई लगेगी. यू नो, दिस इज एक्चुअली सम ऑफ द प्रोग्रामिंग दैट वी डू विद चिल्ड्रन इन द सोसाइटी. सो अब उसके मन में बाहर जाना या साइकिल पे चढ़ना, उस प्रोग्रामिंग में डर जुड़ गया. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितनी बार रिपीट हुआ या उसके बाद जितनी बार उसके मन में चला, और उसके बियॉन्ड अगर उसने किसी को टेलीविजन पे या गेम में साइकिलिंग पे करते हुए देखा तो वो प्रोग्रामिंग उसकी डर के साथ कनेक्टेड होती रहती है. एंड दिस इज हाउ मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग इन द माइंड हैपेंस. बट अनफॉर्चुनेटली ये प्रोग्रामिंग सिंपल चीजों तक नहीं रहती. ये प्रोग्रामिंग धीरे धीरे शुरू तो होती है ऑब्जेक्ट से, चाहे वो स्नेक्स हों, चाहे वो स्पाइडर्स हों, कॉकरोचेस हों, वहां से शुरू होती है. उसके बाद सिचुएशंस में आनी शुरू हो जाती है. स्ट्रेंजर्स के साथ ना जाओ, वो लोग जो हमारे जैसे नहीं है उनसे बात नहीं करो, किसी और लैंग्वेज के हैं उनसे बात नहीं करो, अगर वो अकेले हैं तो उनसे बात नहीं करो, वगैरह वगैरह. अप टू अ पॉइंट प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड. लेकिन उसके बियॉन्ड एक बच्चे का और बाद में एडल्ट्स का जब वर्ल्ड व्यू बदलना शुरू होता है, जहाँ पे द किड स्टार्ट्स फीलिंग एंड देन एन एडल्ट स्टार्ट फीलिंग कि जो बाहर का माहौल है वो बहुत डेंजरस है और उस माहौल की वजह से मुझे खतरा होगा और उस कारण से मेरी शायद एग्जिस्टेंस जो है उस पर असर आना शुरू हो जाएगा. सो उस नेगेटिव वर्ल्ड व्यू की वजह से
हर चीज जो है जब प्रोसेस होती है माइंड के अंदर, तो पहली प्रोग्रामिंग होती है नेगेटिव, फियरफुल। और वो फियरफुल होने के बाद धीरे धीरे, जिसको हम स्टीरियोटाइप्स बोलते हैं, चाहे वो धर्म के हों, जाति के हों, किसी तरह के सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के हों, काम वालों के हों, जेंडर्स के हों, वो सारे हमारे को प्रोग्रामिंग करते करते धीरे धीरे विदाउट इवन रियलाइज, वो प्रोग्रामिंग की वजह से हमको डर लगना शुरू हो जाता है ऑफ सिचुएशंस, ऑफ पीपल, ऑफ प्रीवियस मेमोरीज, एंड देन वी स्टार्ट एंटिसिपेटिंग कि फ्यूचर में क्या हो। और अगर हमारी एंटिसिपेशन नेगेटिव है तो हर फ्यूचर के इवेंट को सोचकर आशंका होनी शुरू हो जाती है। एंड धीरे धीरे ये सिर्फ अपने से रिलेटेड नहीं रहती, then it starts going into the family. A lot of people start feeling very fearful अगर उनके घर का कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है, या किसी को अगर थोड़ा सा बुखार भी हुआ, तो स्पेशली आज के समय में कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी तो नहीं हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली जो सोशल मीडिया है, स्पेशली प्रिंट के साथ साथ पर बहुत ज्यादा उससे अधिक टेलीविजन का मीडियम है, उसमें जो ब्रेकिंग न्यूज है, उसमें जो बार बार yesterday I was looking at one of the channels which said कि जो अभी हिमाचल में डिल्यूज हुआ और जो वहां से पूरी की पूरी पहाड़ खिसका, उसकी ग्राफिक तस्वीरें, आई कांट अंडरस्टैंड कि वो तस्वीरें देखने के बाद किसी को क्या फायदा होगा। दिस इज नॉट न्यूज, बट वो एक तरीके से लोगों को अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव रूप से आकर्षित करती है। बट अनफॉर्चुनेटली वो जो इमेजेस हम देखते हैं, और आज के समय में अनफॉर्चुनेटली इकोलॉजिकल डिजास्टर्स और व्हाट इज नाउ कॉल्ड एज इको एंजाइटी, वो बहुत ज्यादा होनी शुरू हुई है, जिसमें लोगों को ये डर कि कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। आप अपने आप को बहुत सेफ जगह पे समझते हैं, बहुत आलीशान मकान में, चाहे कैलिफोर्निया में, चाहे यूरोप में हो, चाहे हिमाचल में हो, वहां पे रह रहे हैं, बट सडनली आपकी एग्जिस्टेंस, और अनफॉर्चुनेटली अगर आप रोड पे ट्रेवल कर रहे हैं तो ऊपर से अगर लैंडस्लाइड हो गई तो उसके साथ आपकी एग्जिस्टेंस जो है दैट में बी इन क्वेश्चन। इसी के साथ साथ another thing which we have started seeing very very frequently is position, power and money. कुछ समय तक लोगों को लगता था कि अगर मेरे पास पोजीशन है, आई कैन डू एवरीथिंग, पावर है, आई कैन गेट एनीथिंग डन, पैसा है तो मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। नाउ द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट दैट्स नॉट रियली ट्रू, क्योंकि ये जो भौतिक चीजें हैं, वो भौतिक चीजों की वजह से हम कुछ हद तक अपनी जिंदगी को थोड़ी देर के लिए सुखद बना सकते हैं, लेकिन आप खुशी नहीं ले सकते, आप उसकी वजह से पीसफुल नहीं महसूस कर सकते। तो जब आपको लगता है कि जो बेसिक चीजें जिसकी वजह से आप अपने आप को पावरफुल महसूस कर रहे थे, सडनली दे आर नॉट देयर, सो यू फील कंप्लीटली पावरलेस। और उन लोगों ने, जिन लोगों ने इस तरह की चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया है, उनके लिए एक बहुत फियरफुल सिचुएशन है। बहुत सारे लोग इस चीज के बारे में जनरल बात ना करें, हालांकि चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन है, या बॉलीवुड से या हॉलीवुड से रिलेटेड लोग हैं, या इवन पब्लिक फिगर्स हैं, दे हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट देयर ओन फियर्स, देयर ओन एंजाइटीज। और उसी वजह से कई बार लोगों को ये भी लगता है कि वो लोग जो कि एक तरीके से पोजीशन ऑफ पावर में है, जिनके पास सब कुछ है, इफ दे कैन फील फियरफुल, तो जो जनरल व्यक्ति है उसके लिए जो फियर है वो कितना मुश्किल होगा संभालने के लिए, इन केस they are faced with a situation. So basically, externally, there can be triggers, but internally, how we process it, that makes it important. That in a situation, I feel fearful or not fearful. Same situation, two people, different background, different programming of the mind, और उस प्रोग्रामिंग की वजह से उसकी इंटरप्रिटेशन जो है, वो अलग करके उस चीज को अलग रूप से देख सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू लर्न, एंड मोर इम्पोर्टेंटली वी बिलीव दैट दैट इज व्हाट वी नीड टू टीच आवर चिल्ड्रन।
क्योंकि आने वाले समय में हम उन्हें जो स्किल्स सिखा रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर्स की स्किल है या और किसी टेक्नोलॉजी की स्किल है या पैसा कमाने की स्किल है, किसी भी रूप में बिजनेस में या किसी और प्रोफेशन में ज़रूरी है। लेकिन जो स्किल सीखने के बाद उसको उन्होंने आगे ज़िंदगी में लगाना है, वो सारी प्रोसेसिंग माइंड के अंदर होती है। तो माइंड का पूरी तरीके से सशक्त रहना, पूरी तरीके से बिना डर के उस चीज़ को प्रोसेस कर पाना, और उसी के साथ-साथ अगर कोई बाहरी रूप से इम्पैक्ट है, सिचुएशन है, मैं क्राइसिस भी नहीं कहूँगा, तो उस सिचुएशन को डील कर पाना। ये जो आज के समय की एक स्किल है, we need to teach everybody, but at least for the future, we have to start investing in our children and adolescents and young people. So that brings us to the question, how to live a life beyond fear. I think it can be done at 3 levels. First is it has to be done at the level of the society. अगर हम सोचें कि individuals at their own level, they will be able to process all this, they will be able to learn all this. Yes, it starts with individuals. लेकिन सच्चाई ये भी है कि अगर सिर्फ individuals कुछ भी चीज को attempt करते हैं, तो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। Unfortunately, इस तरह की स्किल्स आज के समय में सिखाने के लिए ना कोई स्कूल्स हैं, ना स्कूल करिकुलम्स में बाय एंड लार्ज या कॉलेज करिकुलम में इस तरह की कोई बात होती है। अनफॉर्चुनेटली आज के समय में जो जनरल करिकुलम है वही नहीं पूरा हो रहे। सो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन एक्चुअली go about life in trying to flounder their way. Most of the adults, and that's what our experience is in the clinics, हालांकि हम आमतौर पर उन लोगों को देखते हैं जिन लोगों को की प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ जाती है, but even a lot of people now are wanting to do things by which they can prevent things from increasing. और वहाँ पे उस तरह के करिकुलम्स या सोसाइटी में टॉक्स या उस चीज़ के बारे में एक सोच, अपने आप को स्थिर कैसे रखना है, अपने आप को सिचुएशंस में भी डिस्टर्ब कैसे नहीं महसूस करना है, अगर डर महसूस होता भी है तो उसको किस तरह से एग्जामिन करके किस तरह से उसको ठीक करना, दैट्स समथिंग वी नीड टू लर्न द सोसाइटी. सो वन इज एट द लेवल ऑफ द सोसाइटी, द सेकेंड इज एट द लेवल ऑफ द फैमिली. वो फैमिली या तो घर में हो सकती है, जहाँ पे हम काम कर सकते हैं वहाँ करते हैं, वहाँ पे हो सकती है. एंड व्हाट वी हैव फाउंड इज कि जब भी वो एज अ ग्रुप, चाहे वो स्मॉल ग्रुप है, चाहे कि फैमिली में है, पेरेंट्स हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं अगर, तो वो सारे इकट्ठे एज अ फैमिली प्लान करके किस तरह से इन चीज़ों को सही रूप से ठीक करना है उसके बारे में बात कर सकें, और बात से ज्यादा उसका एक एग्जाम्पल सेट कर सके. When that happens, then you learn by without even learning in words, you learn कि किस तरह से किसी सिचुएशन को बिना डर के स्टेबल होकर हमने हैंडल करना. तो वहाँ पे अगेन learning that and then again talking about it or at least showing that in action becomes the most important. I think we are living in a wonderful place if we want to, जहाँ पे कि आज के समय में at least those people जिनके पास की various like phones, smartphones, इंटरनेट या कंप्यूटर्स हैं, जो कि अलग अलग जगह से इंटरनेट के द्वारा इस तरह की चीज़ों को ले सकते हैं, या यूट्यूब पे इस तरह के हजारों बल्कि लाखों आज के समय में वीडियोस हैं, जो कि इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट करके उस इंफॉर्मेशन को विजडम में एंड स्पेशली प्रैक्टिकल विजडम में, जिस समय कोई भी प्रॉब्लम होती है उस समय उसको कैसे ठीक करना, इसमें लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है. वो सिर्फ अपने आप प्रैक्टिस करने से आ सकता है. एंड आई एम सो हैप्पी कि आज हम एक परिवार के रूप में, आई एम हियर ऑन द invitation of Farishta family of Brahma Kumaris of Greater Kailash 2, कि हम बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं.
ये जो बात है एक ऐसे माहौल में हो रही है जहाँ पे कि इस चीज के बारे में बात करना एक्सेप्टेबल है, जिसमें हम एक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उस तरह की लाइफ स्किल्स के बारे में जो कि हमें सशक्त कर सकती हैं टू बी एबल टू मूव फॉरवर्ड. So thank you once again for the wonderful opportunity. At an individual level, क्योंकि हम में से हर किसी की प्रोग्राम, चाहे हम एक ही घर में रह रहे हैं, फिर भी हमारे में से हर किसी की प्रोग्रामिंग अलग होती है, लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं. हम दूसरों से सीख सकते हैं, लेकिन उस सीखने के बाद उसको प्रोसेस कैसे करना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है. और वहाँ पे हमें सीखने से ज़्यादा उसको अपनी ज़िंदगी पे लगा के और उसको आत्मसात करने की ज़रूरत हो जाती है. ओनली व्हेन यू प्रैक्टिस एनफ are you able to being in those situations, be able to help others, and through your example or through certain practices, and those practices we will talk about in a little while just now, किस तरीके से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं. बिकॉज आज के समय में ज़रूरत है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की, बट हमसे कहीं कहीं ज़्यादा ज़रूरत है उन लोगों की हु आर lay professionals, maybe they are trained a little more, लेकिन वो अपने आप को और अपने एक्सपीरियंस के द्वारा दूसरों को संभालने के लिए तत्पर हैं, एंड दे आर एम्पावर्ड टू बी एबल टू हेल्प अदर्स. So at the level of the thought, first thing that we can understand is how the mind works. You know, it works as one loop. हम कोई भी चीज अगर जिंदगी में करते हैं, it has a starting point and then it has an ending point and then it's a loop again. तो वो जो लूप है, वो लूप है मेरी टीम का, आई टीम. आई is intention, T is thought, E is emotions, A is actions, and M is memories. और जो S से end में, that's called संस्कार और हैबिट पैटर्न्स और पर्सनालिटी ट्रेट्स. सो जो हमारी एक पहली चीज जो आती है मन में, थॉट से भी बिल्कुल पहले, वो होती है इंटेंशन. हम कुछ करने की सोचते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी इंटेंशन है कि अच्छा मुझे जाके ये करना है, पर उसी के साथ में अगर थॉट आता है प्रीवियस मेरी जो पैटर्न ऑफ थिंकिंग है, जो प्रोग्रामिंग है, उसकी वजह से कि हो नहीं पाएगा, करूंगा तो शायद कुछ गलत ना हो जाए, गलत होगा तो लोग क्या सोचेंगे. यू नो, सोशल fears, which are in an extreme form called social phobias, happen to about 25% of the population, not a small number. तो उसी लेवल पे हम डर के उस चीज को आगे बढ़ने से रोक देते, क्योंकि जो थॉट होता है कोई भी फियरफुल, उसके साथ जो सेंसेशन होती है बॉडी की, वो बहुत डर वाली होती है. दिल का धड़कना, मुंह का सूखना, हाथों का कांपना, बेचैनी हो जाना, बार बार टॉयलेट जाने की इच्छा करना. इट्स अ वेरी अनप्लेजेंट सेंसेशन, एंड आई एम श्योर हम में से हर किसी व्यक्ति ने कभी ना कभी कुछ देर के लिए जरूर इसको एक्सपीरियंस किया होगा. तो वो जब फीलिंग आती है तो मन में आता है कि अच्छा छोड़ दो, चलते हैं, कुछ और कर लेंगे. तो वो जब एक इमोशन आती है और एक्शन होता है ऑफ विड्रॉल, तो उस विड्रॉल की एक मेमोरी रिलेटेड जो चीज है, वो ट्राई नहीं करनी चाहिए. जब हम ट्राई करते थे तो उसका मुझको बड़ा नेगेटिव सा असर, और फिर वो धीरे धीरे मेमोरीज जो है वो एक पैटर्न बन के हमारे संस्कार या पर्सनालिटी ट्रेट बन जाते हैं. और कुछ देर के बाद अगर वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, देन पीपल स्टार्ट सेइंग तो बहुत जल्दी घबरा जाता है, छोटी छोटी चीजों में भी परेशान हो जाता है, वगैरह वगैरह. सो उस लेवल को समझकर और हर लेवल पे वी कैन ब्रिंग इन आवर इंटेलेक्ट, जिसको जजमेंट कह सकते हैं, हिंदी में बुद्धि भी कहते हैं. तो वो जब हम बीच में लगाते हैं और हर स्टेप पे रुकते हैं, तो हम जो प्रीवियस एक ऑटोमेटिक पैटर्न है, एक जो प्रोग्रामिंग है, उसको ब्रेक करते हैं. और उसको ब्रेक करते ही उसकी जो पावर है वो कम होनी शुरू हो जाती है. जब आप किसी एक्यूट फियर में हैं तो उस समय करना मुश्किल होता है, एंड दैट इज वाई जिन लोगों को बहुत ज्यादा होती है उन लोगों को कभी कभी ट्रीटमेंट की, दवाइयों की या थेरेपी की जरूरत पड़ती है. बट वहां तक पहुंचने से पहले अगर हम हर बार उसको ब्रेक करके, वी कॉल इट चेक एंड चेंज,
आपने उस थॉट को या फीलिंग को देखा और देख के आपने कहा अच्छा, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग, जिसके के अंदर हम अपने से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या ये बात इतनी बड़ी है, क्या ये बात से मुझे डरने की जरूरत है, ऐसा होने के क्या चांसेस हैं। और जब हम ये चीज अपने साथ बात करना शुरू करते हैं तो फिर अचानक हमें धीरे धीरे समझ आना शुरू होता है कि हाँ, मुझे लग रहा है लेकिन ये शायद इतनी बड़ी है नहीं। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स इन लाइफ इज स्पेशली अबाउट द फ्यूचर, कि जब हम सोचते हैं कि ये चीज शायद नहीं हो पाएगी और उससे मुझे डर लग रहा है, चांसेस आर दैट नेवर हैपेंस। अगर आज के एक प्रैक्टिकल कॉन्क्रीट एग्जांपल को देखें तो अभी भी बात चल रही है थर्ड वेव की। वी डोंट नो कि वो होगी कि नहीं, अगर होगी तो कितने लोगों को होगी, कुछ लोगों को अगर होगी तो किस प्रकार से होगी, उनके साथ कितने तरह के सिम्टम्स आएंगे और एंड रिजल्ट क्या होगा। दीज आर ऑल कंजेक्चर्स। लेकिन उसको सच्चाई समझ के हम अगर ये सोच के कि अच्छा आने ही वाली है, अच्छा बच्चों में ही आने वाली है, अच्छा अगर ऐसे हो को रोक दो वगैरह वगैरह, वो होने से जो फियर फैक्टर है वो बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि जिंदगी में हर सिचुएशन की, स्पेशली जो फ्यूचर में है, एक I would say there is a certain gradations which we realize about everything in life, especially which is कि there is a probability, there is a possibility, and there is a reality. चीजों को होने की हर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी है। जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो वो बहुत कम हो जाती है, और जब तक वो नहीं होती है तब तक वो रियलिटी नहीं बनती। सो वी हैव टू स्टार्ट ओनली लुकिंग एट रियलिटी, एंड वंस इट हैज बिकम अ रियलिटी तो उसके साथ डील करना भी आसान हो जाता है। एंड दैट इज व्हाई एवरी टाइम दैट वी फील फेयरफुल, और उस फेयरफुल होने की वजह से जो हम अपने आप को रोक देते हैं, उस वजह से जो हमारे पोटेंशियल्स हैं जिनको हम पूरा नहीं कर पाते, अगर हम उनको धीरे धीरे चेंज करके और उनको फिर धीरे धीरे ये समझने के बाद कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है, if we can move forward, then it becomes easier for us to attempt that. और वो हम छोटी चीजों से शुरू कर सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसको बढ़ाया जा सकता है। वहां पे आई वुड से दैट ईच वन ऑफ अस, एंड आई एम श्योर कि अभी जो लोग इस समय जुड़े हुए हैं, दे आर वेरी पावरफुल पीपल, पावरफुल sometimes because of the influence that they have, sometimes because जितने जानते हैं, आप में से हर कोई, मैं कहूँगा अगर अपना सेल फोन उठा के और इसमें कॉन्टेक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर्स हैं, अगर को उसको वो आप देखना शुरू कर दें तो वो आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। और अगर उस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आप अपने आप को कैसे स्टेबल रखना है, कैसे फियर के आगे जाना है, ये अगर थोड़ा थोड़ा समझ के और उसके बाद दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं और फिर करना शुरू कर देते हैं, then that has a multiplying effect. आज के समय में जितने भी हम फॉरवर्ड्स करते हैं, we have to see the quality that we are forwarding and for what we are forwarding. Once in a while आपने किसी को हल्का करने के लिए कोई अच्छी चीज ऐसी शेयर की, that is fine, but most of the information that we are forwarding has no particular relevance or use to those who are we are forwarding. वहां पे अगर हम अपनी सोसाइटी में, और मैं अपने अगर कोई मीडिया वाले फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी ये कहना चाहूंगा कि अगर कहीं भी आग लगती है तो वो साथ वाला घर किसका है वो नहीं देखती। सो अगर आज के समय में किसी भी कारण से हम किसी भी नेगेटिव तरह के इन्फ्लुएंसेस को, इंफॉर्मेशन को, फियर प्रोड्यूसिंग चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, then unfortunately वो किस पे जाके किस रूप में आएगी we don't know, including our own families. So this investment
in the future in our society has to happen by all of us, politicians, bureaucrats, media personnel, medical professionals. क्योंकि अगर आप किसी तरीके से सोसाइटी के किसी हिस्से के लिए अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं, then it becomes our responsibility to share the information which can help people to reduce their fears, which can help people to empower themselves. कुछ basic principles in next few minutes we will talk about. One is, can we be empathetic to others? Empathy basically means being in the shoes of the other person. दूसरे की दर्द को समझना, संवेदना. और जब वो होता है तो जो सोसाइटी के फियर्स हैं आपस में, सिचुएशंस के फियर हैं, इंटरपर्सनल फियर्स हैं, वो कम होने शुरू हो जाते हैं. यू नो, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अनफॉर्चुनेटली, आई एम नॉट श्योर दैट दिस इज ट्रू, बट चाहे वो भाइयों भाइयों की है, हस्बैंड वाइफ की है, सास बहू की है, वगैरह वगैरह, तो जहाँ पे वो चीजें मुश्किल हैं, अगर उनमें से एक भी व्यक्ति थोड़ा सा हटके दूसरे की मदद करने की कोशिश करता है, एम्पैथी दिखाता है, and sometimes empathy can only be in gestures, it can be only in emotions, अगर वो होना शुरू हो जाता है, then you have started reducing the fear of another person. It can be words, it can be gestures. उसके साथ साथ altruism का ये मतलब नहीं है कि हमने बहुत ज्यादा लोगों को इकट्ठा बैठ के खाना खिला दिया. That is one form of altruism. लेकिन उसी के साथ साथ, can we be kind to other people? Can we be having a goodwill around us, जिसकी वजह से दूसरे लोग हमको अप्रोच करने में आसानी कर सकें? क्या हम अपने शब्दों के द्वारा और अपने भावनाओं के द्वारा दूसरों को हल्का कर सकते हैं? क्या हम प्रोएक्टिवली दूसरों के सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं? टू सम एक्सटेंट दिस हैपेंड इन बिटवीन, जब लोग अपने घरों में सेकेंड लॉकडाउन में, फर्स्ट लॉकडाउन में भी अकेले थे, तो वहां पे आगे बढ़ के लोगों ने उस चीज को करने की कोशिश की. बट अनफॉर्चुनेटली, एज सुन एज दैट क्राइसिस एक्सटर्नली इज ओवर, इट गोज बैक टू बिजनेस एज यूजुअल. यहाँ पे हमें एज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस वो सब होने की बहुत ज्यादा जरूरत बन जाती है. एट एन इंडिविजुअल लेवल, ऑन अ डे टू डे बेसिस, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी मस्ट डू, एंड आई एम यूजिंग द वर्ड मस्ट, क्योंकि जब तक वो एक रेगुलर प्रैक्टिस नहीं बनता, तो उस रेगुलर प्रैक्टिस के ना बनने के कारण से ऑल ऑफ अस आफ्टर सम टाइम, जो भी कोई नई चीज है उसकी शुरुआत होती है, थोड़े दिनों के बाद खत्म होनी शुरू हो जाती है. तो जब तक हम उसको रोजमर्रा की जिंदगी में इंक्लूड ना कर सके, तब तक वो एक परमानेंट पैटर्न नहीं होगी. एंड लेट्स आल्सो नॉट फॉरगेट कि जो पुराने पैटर्न्स हैं वो सालों साल से, कई शायद पुराने भी जन्मों से चलते आ रहे हैं, तो वो जो पैटर्न्स हैं उनको ब्रेक करना बहुत जरूरी हो जाता है. सो वन इज, और यहाँ पे आई वुड से, लेट मी गिव यू सम ज्वेल्स ऑन एन एवरीडे बेसिस. फर्स्ट इज इन्वेस्टिंग इन साइलेंस एंड मेडिटेशन एवरी डे. वो इसलिए जरूरी है क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में भावनाएं आती हैं, थॉट्स आते हैं, और उनके आने के बाद फिर वो चलते रहते हैं, और जब हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं तो वो मिक्स होती रहती हैं, और फिर एक्शंस और रिएक्शंस होने शुरू हो जाते हैं. बुद्धि बीच में आना एज अ फिल्टर खत्म हो जाती है. सो अगर हम कुछ देर के लिए अपने आप को आसपास की चीजों से हटाकर अपने मन के विचारों को देखकर, लाइक अ ट्रस्टी, एक दृष्टा जिसको कहते हैं, उस रूप में देखकर, अगर हम अपने विचारों को स्लो डाउन करने के बाद किन किन चीजों से मेरे मन के अंदर या मेरे द्वारा किसी और के अंदर भय आया और उसकी बेसिस क्या है, अगर हम देख सके. अगर बहुत ज्यादा घबराहट है तो वो होना मुश्किल होता है. देयर अगेन देयर इज अ ज्वेल to be tried every day, and that goes cuts across all people, all populations, which is deep slow breathing. जो हमारी ब्रीदिंग है वो हमारे मन से और ब्रेन के पैटर्न से जुड़ी हुई है. जब हम एंग्शियस होते हैं तो हमारी ब्रीदिंग जो है वो बहुत इस तरह से फास्ट हो जाती है,
और जब हम रिलैक्स्ड होते हैं तो कहा जाता है कि जो योगी है वो योगी की ब्रीदिंग चल रही है तो आपको पता भी नहीं लगता। तो वो जो ब्रीदिंग है वो बहुत ही स्लो एंड डीप है। और अगर आप सिर्फ अपनी ब्रीदिंग को स्लो एंड डीप करना शुरू करते हैं, रिदमिक, स्लो एंड डीप, अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 times इन अ मिनट, और फिर अगर उसको और आगे तक ले जाएं तो 6 से 8 बार, तो वो करने से हम इमीडिएटली रिलैक्स होना शुरू हो सकते हैं। एक्यूट एंजाइटी है, बहुत ज्यादा आपको पैनिक अटैक है तो नहीं होगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और इसको किसी भी समय किया जा सकता है, खाने के 1 घंटे बाद तक नहीं, बोलते वक्त आप नहीं कर सकते, बट और किसी भी एक्टिविटी में सारा दिन में इसको किया जा सकता है। एंड मेनी अ टाइम्स यू कैन स्टार्ट विद डीप ब्रीदिंग, have your mind become relaxed, and then go in for meditative practices. और meditative जो practices हैं, they are more of a reflection. और शुरू शुरू में शायद आपको मेडिटेशन जो है वो बैठ के एक जगह पे फोकस होके करने की जरूरत पड़ती है, पर धीरे धीरे जब आपके माइंड स्लो होना शुरू होता है तो उसके बाद चलते फिरते आपका माइंड इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करेगा, then you're able to take it up in any situation anywhere, and उसको हम meditative lifestyle कहते हैं, which is there at all points of time during the day, including your sleep. You can program your mind to sleep better. तो वो जो है वो एक तरह से एक सारे समय अपने माइंड को नए रूप से जिंदगी को देखने का एक तरीका बन जाता है, and that's called Rajoga meditative lifestyle, as taught by the Brahma Kumaris. I think इसके सेशन के बाद maybe there would be a small little announcement on that particular thing. And then what is called as mindfulness. Actually अगर देखा जाए तो हमारा मन जो है वो एक समय में एक ही चीज सोच सकता है, लेकिन आमतौर पे अगर आप अपने मन को देखेंगे तो वो जंप करता, it's said also that mind is like a monkey, तो वो जंप करता है पास्ट। उसको कोई भी क्यू मिलती है, उससे रिलेटेड कोई और चीज होती है, जैसे कंप्यूटर में होता है। कई बार एक फाइल जो है, उस फाइल का जो एक वर्ड है, उस वर्ड से रिलेटेड और जितने भी फाइलें हैं वो आ जाती है, और आपको कॉन्शियसली उस समय में बाकी फाइलों को डिसरिगार्ड करके वापस उसी फाइल पे आना पड़ता है। तो माइंड जो है वो पास्ट और फ्यूचर के बीच में जंप करता है। तो उसको आज के समय में, इस समय, हियर एंड नाउ एज इट इज कॉल्ड, बिकमिंग माइंडफुल फॉर एवरीथिंग अराउंड यू, इंक्लूडिंग योर ओन माइंड, including your own thoughts and emotions, including the actions that you're contemplating. होने से पहले हमारे मन में actions आते हैं, तो including that अगर हम उसके बारे में mindful हो सके तो फिर आप हर समय अब में जिएंगे। And when you live in the present, then the fears are very few, because in the present there's much less for most of the time all of us to be fearful about. Fear is mostly about the future, mostly about what has happened and you don't want it to happen again. तो उस कारण से अगर हम उसको वहीं पे फुल स्टॉप लगा के आगे ना जाने दें तो हम उस माइंडफुलनेस की वजह से अपने आप को बड़ी आसानी के साथ प्रैक्टिस करके यू कैन लर्न टू कट डाउन द इंफॉर्मेशन गोइंग इनसाइड द माइंड। उसी के साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में चीज है कि जो बाहरी रूप से टॉक्सिक इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में आ रही है उसको हम कितना कट ऑफ करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से है, चाहे वो टेलीविजन न्यूज़पेपर से है, चाहे वो दूसरे लोगों ने क्या कहा और उस चीज को सोच के मेरे मन में चल रहा है। तो अगर उस इंफॉर्मेशन को हम कम से कम कर सकेंगे या कट ऑफ कर सकेंगे तो फिर अपने साथ काम करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। एंड देन वी हैव टू आइडेंटिफाई वन बाय वन, मे बी खासतौर पे अगर बहुत एक कई लोगों के कुछ थीम्स होते हैं और उन्हीं थीम्स के ऊपर उनको डर लगता है। वी सी कि कुछ लोग हैं जिनको कि अगर लाखों का भी नुकसान हो जाता है उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर में कोई बीमार हो जाता है दे बिकम एक्सट्रीमली फेयरफुल एंड वाइस वर्सा। सो वहां पर वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि हमारे सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल
क्या ऐसे हैं जिनकी वजह से हम fearful होते हैं? Identify them and do the Socratic questioning that we talked about. कि क्या ये सच है? अगर सिर्फ probability है तो छोड़ दीजिए, और अगर हो रहा है, हो सकता है, possibility है, तो क्या क्या हो सकता है पहले उसको समझ लें। और अगर हो रहा है और होने ही वाला है, रियलिटी बनती जा रही है, देन वी हैव टू सी व्हाट इज टू बी डन। लेकिन अगर आप उस समय स्टेबल होंगे तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे। और अगर आप सिर्फ प्रोबेबिलिटीज में घूमते रहेंगे तो कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ये हो सकता है, वो हो सकता है। यू नो, वी हैव हैड पीपल जिनके बारे में, because I'm not taking names, but people who are very very influential, they would start fearing कि अच्छा अगर कोई बीमार हो गया तो बीमार होने के बाद अगर मैं हॉस्पिटल में गया और वहाँ बेड नहीं मिला, और अगर बेड मिल भी गया तो ऑक्सीजन होगी कि नहीं होगी, अभी कोई बीमार नहीं हुआ, अभी कोई वेव नहीं आई, लेकिन मन जो है वो बहुत दूर तक जाता है। तो इसीलिए अपनी उस ऐसे जितने भी हमारे मन के अंदर थीम्स हैं फियर के, वो जो हैं वो हमको तंग करते हैं। ऑफ कोर्स कई कारण हैं इसके। कई बार हमारी जो पुरानी इनसिक्योरिटीज हैं, कई बार हमारी जो अटैचमेंट्स हैं, चाहे अपने पोजीशन से हैं, अपने लोगों से हैं, बट वी ऑल हैव टू रियलाइज वन थिंग कि वो अटैचमेंट्स अच्छी हैं, लेकिन जब वो अटैचमेंट भेड़ियां बन जाए, जब वो फियर्स हमको कोई भी चीज करने से, सही डिसीजन लेने से रोक दे, देन वी डू नॉट नीड टू अलाउ दैट टू हैपन। एक सही बैलेंस ऑफ नोइंग what are the possibilities and then dealing with them if they are happening। और उसके लिए ये जो प्रिपरेशन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, और वहां पे कुछ एफर्मेशंस इनको कहा जाता है, और जो सच्चाइयां हैं, यहाँ पे हम कोई मनगढ़ंत बातों के बारे में बात नहीं कर रहे। अगर आप आज स्वस्थ हैं, देन रिमाइंड योरसेल्फ दैट आई एम हेल्दी। अगर आपके पास आज पैसा है तो रिमाइंड योरसेल्फ दैट यू हैव द मनी। अगर आपके पास आज के समय में परिवार है, देन यू रिमाइंड योरसेल्फ। और उसी के साथ साथ देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रेटिट्यूड, जो कि शुक्राना कह लीजिए। वो अगर दिन में 5 बार 6 बार, सुबह उठने के बाद, सोने से पहले, हर समय जब हम खाना खाते हैं, उस समय पे, या जब भी कोई चीज हमारे साथ सही होती है, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। इफ वी डोंट डू दैट, तो जितनी बार हम उसका शुक्राना देंगे, तो फियर फ्यूचर का कि ये ऐसे फिर से शायद ना हो, वो नहीं रहेगा। बिकॉज एवरी डे यू आर रिमाइंडिंग योरसेल्फ दैट यू आर सो फॉर्चुनेट। एंड ये सारी चीजें दूसरों के साथ शेयर करना, नॉट ओनली योर वेल्थ, not only your position and what you can do for others, but what you're learning, what your emotions are, और किस तरीके से आप उनकी एज अ ह्यूमन बीइंग मदद कर सकते हैं अगर रोज होना शुरू हो जाता है। इट जस्ट रिक्वायर्स अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ। और वहां पे ईच वन ऑफ अस, आई थिंक, फियर के साथ मैं अभी चैट में देख रहा था जो कुछ चीजें आ रही थी। One of course is how to do this, how to do this, how to do this, but उसी के साथ I think most important is कि after you have learned how to do it, what is the purpose with which you want to learn? क्या ये सिर्फ मैं अपनी घबराहट कम कर दूं उसके लिए है? तो मेरे हिसाब से, and that's my experience with a lot of other people, वो कुछ हद तक कामयाब रहेगा। लेकिन अगर उसको लेकर मैं एम्पलीफाई करके दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ, विच बिकम्स माई पर्पज ऑफ लाइफ, चाहे किसी भी फील्ड में आप, तो जब वो आपका पर्पज ऑफ लाइफ बन जाता है, तो पूरा यूनिवर्स जो है वो आपके साथ उस काम को करने में मदद करता है। एंड आई थिंक ईच वन ऑफ अस नीड्स टू स्टार्ट डूइंग इट फॉर आवरसेल्व्स ऑन अ डेली बेसिस, एंड देन स्प्रेड इट टू दोज अराउंड अस, चाहे वो हमारा स्टाफ हो, चाहे हमारे घर के लोग हों, हमारे नेबर्स हों, हमारे रिलेटिव्स हों, उनमें से कुछ हो सकता है लोनली हो, उनमें से कुछ हो सकता है घबराहट में हो। अगर हम उनके साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं, तो जो हमारे डरों का बर्डन है मेरे मन पर, वो कम होना शुरू हो जाता है। एंड इफ यू कैन डू इट ऑन एन एवरीडे बेसिस, देन दैट बिकम्स अ लिविंग रियलिटी एंड नॉट ओनली द फियर ऑफ नाउ or the future. So welcome to that world where we are
living beyond fears, it won't happen automatically. It won't happen because we want it to happen. It will only happen if we want it to happen, if we make it happen, and if we have a commitment to make it happen. Thank you very much for all your time and patience, and just for 2 or 3 minutes before we go further, uh, I would request everyone to sit for a minute. Take a deep breath. Make it slow. Step back from your thoughts. Step back from all the emotions. Consciously pick out just those thoughts of positivity or the situations of peace or the people who give you happiness or the images of the past that you feel good about to be there in the mind. All the negative, discomforting, distressing thoughts, emotions, past memories, let them go. They are not there except in your mind. अपने मन को हल्का करना शुरू करें और एक चॉइस के द्वारा, कॉन्शियसनेस के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, हंसों जैसे वो विचार, भावनाएं, यादें जो मुझे सुखी, खुश और स्टेबल, एम्पावर महसूस कराती हैं, उनको अपने मन में रखें। जो मुझे तंग करती हैं, घबराहट पैदा करती हैं, डर लाती हैं, गुस्सा लाती हैं, उनको छोड़ दें, क्योंकि वो भावनाएं या विचार उन्होंने मुझे नहीं पकड़ा और मैंने कहीं ना कहीं उनको पकड़ा। So we have the choice of, after discerning, letting them go. Keep taking a deep breath and slowly come back to the present. Thank you very much. And मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा सिस्टर संगीता से फ्रॉम ग्रेटर कैलाश, जो कि इस प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजर हैं एंड डायरेक्टर भी हैं वहाँ की. She had some announcements, and then of course any questions or discussions. Welcome. Om Shanti. Thanks a lot, very much. और बहुत पावरफुल सेशन रहा. आई एम श्योर विद द स्माइलिंग फेसेस, फियर को आपने निकाल दिया. राइट? इज इट ट्रू? बट इज इट फॉर 1 hour, फॉर एवर? व्हाट डू यू फील? 1 hour तो निकल गया. व्हाई? बिकॉज यू वर इन दिस काइंड ऑफ एनर्जी. सो बट हमेशा के लिए निकालना है.
अब देखो 1 hour भी कैसे निकला हम सबका fear. What was the magic here? At least we could smile. We could think beyond. Is it true? Because of the powerful words which we were listening. जो अच्छी बातें सुनते जा रहे continuously, तो वो जब सुनते हैं तो वो चीज निकल जाती है. उस समय के लिए तो होता ही है, मे बी उसका डिपेंड करेगा, थोड़े समय तक उसका इफेक्ट रहेगा भी रहेगा, किसी का और कुछ दिन भी रह सकता है, ऐसा ही होता है ना. तो इसका मतलब अगर हम इसको और रोज सुनते जाए तो क्या हो जाएगा फिर. जैसे 1 घंटा सुनने के बाद उसका इम्पैक्ट हुआ, हाउ मेनी फील की इम्पैक्ट हुआ है, कुछ समय तक चलेगा, राइट. इज इट ट्रू? हाँ, कुछ समय तक चलेगा क्योंकि सुन रहे थे, और वो भी कितनी पावरफुल वर्ड्स थे, एक्सपीरियंस्ड वर्ड्स थे, और प्लस एक एक्सपर्ट इन दैट फील्ड वो हमको कहता है, एंड प्लस दैट पर्सन who has a powerful spiritual also integration in his medical field. ये दोनों का कॉम्बिनेशन आज ये असर कर रहा है, होता है ना ऐसा. तो इसका मतलब 1 घंटा हम कंटिन्यूसली सुनते गए इस टाइप से, तो हमारे में फर्क आया है, डिफरेंस आया है. तो अब रोज अगर 1 घंटा सुनेंगे तो आपको क्या लगता है और फर्क आएगा. और अगर 8 days ऐसा सुनते जाए तो फिर काफी चेंज आ जाएगा. क्योंकि डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, 1 दिन का डोज होता है अवधेश भाई, या एटलीस्ट मिनिमम एंटीबायोटिक्स 5 days का होता है. इज इट ट्रू? 5 days का एंटीबायोटिक होता है. तो यहाँ है 8 days का एंटीबायोटिक आफ्टर दिस. सो दिस वाज अ सेशन, और उसके बाद 8 days का एंटीबायोटिक है. तब ये वो एक्चुअली प्रैक्टिकल वी विल फील इट. एंड एज वी वर जस्ट नाउ लिसनिंग, विच वॉज वेरी पावरफुल, आई फेल्ट कि थैंक यू करते जाओ. थैंक यू का मीनिंग क्या है कि वो आज मुझे मिली है, और जरूरी नहीं कि रोज मिलती जाएगी. जैसे कोई करता है, हम बहुत दिल से कहते हैं थैंक यू, तो अभी मुझे मिली है तो बाद में चली भी जाएगी वो. इसलिए जब जब मिली है, जितनी मिली है, उस समय हम कहते हैं थैंक यू. हम सोचते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड कि खाना ऐसे ही मिलता रहेगा, धन ऐसे ही मिलते रहेंगे, लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे, लेकिन मेरे पास वो उपलब्धियां है, अचीवमेंट्स है, अभी है एट दिस. तो थैंक यू का मतलब हो सकता है कल ना भी हो, तो आज है, आई एम थैंकफुल फॉर इट. सो दैट वाज अ वेरी पावरफुल वर्ड ऑल्सो, आई लाइक्ड. तो इस तरह से हम उसको रोज थैंक यू करें जो भी मिल रहा है, तो हम रेडी रहेंगे कि नहीं भी है तो कोई बात नहीं. इसकी इस रेडीनेस के लिए ये 8 days का एंटीबायोटिक है. तो 8 days के एंटीबायोटिक के बाद फर्क लगेगा. और क्या होता है उसमें, एंटीबायोटिक में क्या करते हैं कि 1-2 दिन नहीं चलता है, ऐसा ही है ना अवधेश भाई जी. बोला 5 days का कोर्स कंप्लीट करना चाहिए, तभी उसका असर होता है. 1-2 दिन करने से नहीं, मतलब नॉट रिकमेंडेड. तो सिमिलरली इट इज, दिस इज, ये फियर के लिए स्पिरिचुअलिटी एंड पॉजिटिव एफर्मेशंस, दीज आर द ओनली एंटीबायोटिक. तो ये 8 days करना चाहेंगे आपको. तो 8 days ऐसा लगेगा कि आई एम थैंकफुल जो भी मिल रहा है, जो भी है, मतलब मैं रिस्पेक्ट करती हूँ जो मेरे पास है. तो वन ऑफ द फीलिंग इज दिस. सो व्हेन यू रिस्पेक्ट इट, वो चीज मेरे पास ज्यादा आती है. कई बार हम एक्सपेक्ट करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, तो इसलिए वो चीज दूर जाती है.
तो ये रिस्पेक्ट की नेचर हम डेवलप करते जाएंगे और फिर रेडीनेस भी रहेगी। तो दिस दोनों चीज के लिए ये एंटीबायोटिक, स्पिरिचुअल एंटीबायोटिक्स फॉर 8 days स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो 6:30 AM to 7:30 AM, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ है। सेंटर पे भी आ सकते हैं इफ यू रियली फॉर मोर पावरफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि सेंटर का वातावरण ब्रह्मा कुमारी के जितने भी ब्रांचेस है वहाँ कंप्लीटली प्योर वातावरण, क्योंकि सारा दिन यही चलता है। और प्लस फिर वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मेडिटेशन का, जो वाइट कलर और रेड कलर, ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये सेंटर पे मिल सकता है, तो इसका इफेक्ट और जल्दी होता है ना। कोई चीज होती है कि हॉस्पिटलाइज करना होता है तो जल्दी उसका ठीक होता है। तो इसलिए जिस डिपेंडिंग आपका केस कैसा है और आपको कितनी फास्ट उसकी ट्रीटमेंट चाहिए, तो अगर आप सेंटर पे आएंगे तो और अच्छा रहेगा, बेस्ट रिजल्ट्स होगा। शायद जो 8 days में होता है हो सकता है वो 4 दिन में आ जाए वो रिजल्ट। तो इसलिए वो इनविटेशन है। तो मॉर्निंग 6:30 AM to 7:30 AM और इवनिंग 6:30 PM to 7:30 PM, 2 टाइमिंग्स फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स ये कोर्स चलेगा। सो ऑल आर इनवाइटेड and once again thanks अवधेश भाई to motivate everyone। डॉक्टर की स्टैंप लग जाती है ना तो क्या हो जाता है उसमें वो वैलिड हो जाता है। जैसे सरकार की स्टैंप लगने के बाद वो डॉक्यूमेंट नहीं होता है, वो एक लीगल पेपर हो जाता है वो पेपर ही। तो इफ डॉक्टर्स आर सेइंग, so then we tend to really feel it. So therefore we have to take care of that words also, and उस वर्ड्स को हमें फॉलो करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ वापस सब आप सबका भी बहुत बहुत थैंक्स, अवधेश भाई का भी। और अभी हम थोड़े 10-15 मिनट्स क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं। कई क्वेश्चंस आए हुए हैं और दो लिंक जो है वो हमने भेजा है ऑनलाइन चैट में, लिंक भेजा है। बाकी नंबर्स भी है, इन केस आपको लिंक नहीं मिला है ऑन इन योर चैट्स, वो लिंक वो नंबर है, वहाँ आप कॉल कर सकते हैं। ओके तो आज इस ऑनलाइन का फायदा ले, फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड हम सब कनेक्टेड है, तो इस वर्ल्ड का भी हम फायदा ले और ज्वाइन करें। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सिस्टर संगीता। आपने जो बात कही स्टैंपिंग, तो मैंने जो भी आज कहा वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, वो जो क्लाइंट्स हैं हमारे जिनके साथ हम ये प्रिंसिपल्स को लगा पाते हैं उनके एक्सपीरियंसेस हैं। और मैं ब्रह्मा कुमारी के साथ करीबन 30 साल पहले जुड़ा, और ये सब ठोक बजा के देखने के बाद वाले एक्सपीरियंसेस हैं। ये कहीं से पढ़ के और कहने वाली चीज़ें नहीं होती। तो a lot of it is self-churning, a lot of it is experience of people who are in distress, और उसके बाद उनका बदलना, उसके एक्सपीरियंसेस हैं। और आज के समय में स्पिरिचुअलिटी जो है, शुरू में भावना बहन ने जो कहा था कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो आज के समय में इज नो लॉन्गर थॉट टू बी अवे फ्रॉम मेंटल हेल्थ। दोनों स्ट्रीम्स जो हैं वो व्यक्ति पे ही काम करती हैं। तो मेंटल हेल्थ को बढ़ाने के लिए जैसे और तरह की थेरेपीज हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, उसी तरह से स्पिरिचुअल कल्चरल प्रैक्टिसेस को उसको अपने जीवन में अपना के भी हम अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जहाँ पे भी किसी तरह की प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा है, उस समय कई बार हम ठीक सोच नहीं पाते, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है ताकि आप स्टेबल हों और उसके बाद इन प्रैक्टिसेस को करें। लेकिन लॉन्ग टर्म पे और अपने माइंड को और मेंटल हेल्थ को स्टेबल और एम्पावर्ड रखने के लिए दीज आर वेरी यूजफुल प्रिंसिपल्स। सो एनी क्वेश्चंस आप मोस्ट वेलकम। Can I ask you the questions? क्या जी दीदी।
Okay, one of the questions from Dr. Sanjeev Agarwal was, can non-communicating behavior develop fear and panic disorder? I think he means to say when a person is not open about his feelings and get this increase. इसको मैं दो रूपों से देखता हूँ. Okay. एक है कि आप अगर किसी से बात नहीं करते तो आपके मन में जो चल रहा है वो चलता रहता. थैंक यू डॉक्टर संजीव फॉर दिस क्वेश्चन. तो वो आपके मन के अंदर चलता रहता और वो चलता रहने की वजह से आप कई तरह की आशंकाओं को अपनी जिंदगी में ले आते हैं जो कि सच्चाई ना भी हो. और कई बार बचपन में एक्सपीरियंसेस होता है बच्चों के कि उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की और बाकियों ने उनको चुप करवा दिया और वो डर गए और जिस रूप में चुप करवा दिया उसकी वजह से उनके मन में बहुत घबराहट पैदा हुई और धीरे धीरे उन्होंने अपने मन के अंदर उन चीज़ों को दबाना जो था वो बेहतर समझा क्योंकि दे फेल्ट थ्रेटेंड. तो वैसी सिचुएशन में हाँ, और उससे रिलेटेड तरह की सिचुएशंस में फ्यूचर में और कई बार हाईली सक्सेसफुल पीपल आउटवर्डली, लेकिन उनके मन के अंदर कई तरह के फियर्स रहते हैं अपने बारे में, अपनी क्षमताओं के बारे में. सो दैट इज वन एंड दैट इज डेफिनेटली देयर. और वहाँ पे आई वुड से कि कुछ तरह की जिनको हम एफर्मेशंस कहते हैं कि मैं पावरफुल आत्मा हूँ, मैं पावरफुल व्यक्ति हूँ और मुझे गिल्टी महसूस करने की जरूरत नहीं है और जो हुआ वो पास्ट में हुआ और अब जो मैं कर रहा हूँ वो अपने और दूसरों के लिए बेस्ट है. तो इस तरह की चीज़ों को याद दिलाने से और जो पहले था उसको ड्रॉप करने से आप नए तरीके से अपने आप को और सिचुएशंस को देख सकते हैं. इसी क्वेश्चन का एक दूसरा भाग भी है विच ऑल्सो हैपन्स इन फैमिलीज एंड पिछले 1.5 साल में खासतौर पे काफी देखने में आया है कि अगर एक व्यक्ति चुप रहना एक टैक्टिक बना ले कम्युनिकेशन करने का कि उसको जब गुस्सा आता है तो वो कहता नहीं है कुछ गलत, वो गुस्सा दिखाता भी नहीं है, लेकिन वो अपना गुस्सा चुप रह के दिखाता है और कई बार वो चुप रह के और एक्शंस जो होते हैं उनके वो वर्ड से ज्यादा पावरफुल और वॉयलेंट होते हैं. तो वैसे में दूसरे जो उसके आसपास के लोग हैं उनको बहुत गुस्सा होना की डर लगता है कि कुछ और बात ना हो जाए और इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है फॉर अस टू रियलाइज कि हमारे घर के आसपास खास तौर पे जो माहौल है उसमें इन्वेस्ट करने से, उसको ठीक करने से, और अगर किसी और व्यक्ति को भी कोई दिक्कत पैदा हो रही है तो उस चीज को ठीक करना जरूरी होता है, नहीं तो उसका सब पे प्रभाव पड़ता है. और वहां पे जिसको चाय पे चर्चा कह सकते हैं, कई बार बैठ के एक डिस्कशंस, लेट्स से नॉन थ्रेटनिंग डिस्कशन, सिर्फ एक दूसरे को समझने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, कोई कमेंट नहीं देना, कोई जजमेंट नहीं पास करनी, वो कई बार बहुत ज्यादा यूजफुल शुरू होता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बात की और सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये जितने भी पैटर्न्स हैं ये सालों के होते हैं और उनको जाने में भी समय लगेगा. लेकिन उसमें अगर आप जिसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहते हैं कि अपनी तरफ से आप शुभ भावना देते रहें, अपनी तरफ से आप कोई गलत चीज ना करें, तो दूसरे को भी आप में कॉन्फिडेंस होना शुरू हो जाता है. I think somewhere this answers the next question also. Okay, is there any role of nuclear families in creating fear? जो आपने कहा शायद माहौल वैसा हो जहाँ कम्फर्ट हो, या और कोई इसका पहलू है? जी देखिए, न्यूक्लियर फैमिलीज जो हैं, यस वहाँ पे क्योंकि आमतौर पे ज़्यादातर स्पेशली लॉकडाउन से पहले तो पेरेंट्स जो थे वो बाहर जाते थे काम करने के लिए, अगर दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं, या अगर एक ही कर रहा है तब भी एक पेरेंट मिसिंग है, तो वहाँ पे इस तरह की पॉजिटिव पेरेंटिंग जिनको हम कहते हैं वो कम होती है. लेकिन अब 1.5 साल से जहाँ पे कि फैमिलीज इकट्ठी रह रही है तो मौका है उस चीज को ठीक करने का. व्हाट इज रिक्वायर्ड फियर को कम करने में कि आपके पास रोल मॉडल्स हो जो उस तरह की सिचुएशन को बिना फियर के हैंडल कर सके. और अगर वो होना शुरू होता है तो
दूसरे भी जो खासतौर पे बच्चे हैं वो समझते हैं कि हाँ, ये इतनी कोई डरने की चीज नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई है या कोई इश्यू हुआ है तो उस इश्यू को हम प्रॉब्लम ना समझें, प्रॉब्लम को हम क्राइसिस ना समझें और उसके साथ काम रहकर, रिलैक्स्ड रहकर समझ के प्रॉब्लम को और फिर डील करें। तो वहां पे कई बार जो एक्सटेंडेड या जॉइंट फैमिलीज होती थी उसमें कोई और लोग होते थे जो कि इस तरह का बिहेवियर दिखाते थे, और अगर एक व्यक्ति थोड़ा सा जल्दी डिस्टर्ब होता था तो दूसरे लोग थे जो कि फिल इन कर देते थे, जो कि न्यूक्लियर फैमिलीज में थोड़ा मुश्किल है। बट आज के समय में अगर हम चाहें तो टेक्नोलॉजी के द्वारा हम सलाहें तो ले सकते हैं, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि दूरियां जो है वो दिलों को दूर करें। चाहे तो हम कहीं से भी सीखते हैं और कहीं से भी हम अगर चाहें तो उसका फायदा उठाकर हम अपने स्ट्रेसेस को कम कर सकते हैं। Okay, thank you. एक और क्वेश्चन है, इज हाइट फोबिया और वाटर फोबिया रिलेटेड टू द पास्ट? Yes, there have been theories that maybe it is related to past life, but definitely कुछ लोगों, and I would say majority of people के साथ कोई इंसिडेंट हुआ होता है जहाँ पे मान लीजिए किसी ने उसको हाइट पर डरा दिया, जोर से झटका, बिल्कुल एक एज पे कहा कि अच्छा नीचे गिरा दूंगा, या कई बार पेरेंट्स ही डराने के लिए बच्चों को कहते हैं अच्छा तूने कुछ गलत किया तो ऊपर से फेंक दूंगा। तो वो जो है वो बहुत एक बड़ा फियर का कारण बनता है। और कई बार स्पेशली अगर किसी को आप स्विमिंग पूल में या तालाब में अचानक फेंक दें और उसको तैरना नहीं आता तो वो एक बहुत ट्रॉमेटिक इवेंट हो सकता है। कोई भी सिचुएशन जिसमें आपको घबराहट पैदा होती है वो आपकी प्रोग्रामिंग हो जाती है उसी समय कि आप उस चीज से डरेंगे। अगर उसके बाद आपका कोई पॉजिटिव रिस्पांस होता है उसी सिचुएशन में, आप उसको पेशेंट जिसमें आपको घबराहट पैदा होती है वो आपकी प्रोग्रामिंग हो जाती है उसी समय कि आप उस चीज से डरेंगे। अगर उसके बाद आपका कोई पॉजिटिव रिस्पांस होता है उसी सिचुएशन में, आप उसको कर पाते हैं तो आप अपने आप को सक्षम महसूस करते हैं और उस सक्षम महसूस करने की वजह से पुराना फियर कम हो जाता है। या कोई आपसे आके बात करता है, उस डर को निकाल देता है, या आप कोई चीजें ट्राई करते हैं और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है तो वो कम हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो देन यस, इट कंटिन्यूज टू बी अ फोबिया फॉर लाइफ। लेकिन उसको ठीक किया जा सकता है व्हेनेवर यू वांट। Thank you, Avdeshwar. So we picked up a lot of keywords today, जिनमें थे empathy, altruism, silence, meditation, slow breathing, restricting the toxic information, gratitude, and looking at the purpose of life. I think I've got some of the keywords from your talk today, and we have the details about the course also in the chat. And so you taught us today the techniques to be that eagle in the sky, जो नीचे अर्थ को भी देख रहा है, but his life is in the sky. This is the gist of the talk I've gathered, and I think everybody has got valuable guidance today from you. And thank you so much, Dr. Avdesh. Thank you, Bhavna Ben. I think you picked up the keywords very beautifully.